In the past few classes, we had started off with the very first chapter, Evolution of Business. We had started off with the kinds of activities that we have, then proceeded further, studied the nature and significance of business, then what are the objectives that a business needs to achieve. We have completed. Then what is the importance of profit in business and what is the risk factor. These all we have already covered. Now जितना पहले कवर हुआ है, this is all actually, if you look into your NCERT, that is the old part of our syllabus. मतलब ये सारा हमारा पहले में रहता था. ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं ना, this has been added just 2 years back. This particular concepts have been added 2 years back. This is to show that business is not a new concept in India. In India, in fact, trade and commerce have been a backdated, you can say, sector which was flourishing in fact at a time. हमारा जो बिजनेस था वो एक टाइम में बहुत फ्लरिश करता था, बट ड्यू टू द ब्रिटिश इंटरवेंशन, यू कैन कॉल दैट ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द colonial government, the business sector had a setback. And that is why when 1947 में when we had the 1947 में we had the developmental model. At that particular time we were having the industries we were having were few. Yet if we look into the older time, we had a very good business. Now, as I said, that India had a very, very old maritime route, then the route through which we traveled by road. We did not have an infrastructure of roads. हम ये नहीं बोल सकते कि उन दिनों में roads होते थे, लेकिन जो पहाड़ होते थे, जो mountain passes होते थे, एक mountain से चढ़कर दूसरे mountain, उसके through जो है we have been exporting many things. And जो silk route है, this can be your MCQ question also. The silk route is the route which connects China towards the western parts of the world. जो silk route है, that is the route that starts from China. Actually China जो है, it is called as the hub of silk. तो आपका जो ले लद्दाख वाला जो एरिया है, मतलब टचिंग इंडिया, वहाँ से देन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो पहले था, देन अफगानिस्तान एंड टूवर्ड्स द वेस्टर्न जो आपका वर्ल्ड है, वहाँ तक आपका सिल्क रूट कंप्राइज होता था. एंड दिस इज वन ऑफ द की रूट विच इवन वी यूज्ड. एंड इफ यू लुक इनटू द सदर्न पोर्शन जहाँ पे आपका मछलीपट्टनम वगैरह है, दैट्स इन दी this Andhra region, that was also one of the oldest trade centers. So that is why this stands for the Indian subcontinent as a whole, in which Himalayas in the north bordered by water in the south. The network of roads merging into the Silk Route. Now we are having network of road, but earlier Silk Route was a remote area, remote you can say route which connected. In establishing the commercial and political contacts with the adjoining foreign kingdoms and empires of Asia, particularly the world in general. आपका हमारा जो यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, दे आर द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज, एंड दीज एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जो थे, दे वर इवन टेकिंग अप द कोर्सेज. आज हम जिसको BBA, BCom, फाइनेंस वगैरह बोलते हैं ना, सच कोर्सेज इवन वर देयर, and they were the oldest and ancient universities where people across the globe used to come. नालंदा आपका बिहार की तरफ, तक्षशिला आपका पाकिस्तान की तरफ.
एंड जो आपका मैरीटाइम रूट्स है दैट इज द वाटर, इट लिंक द ईस्ट एंड वेस्ट सी। और हमारे जो स्पाइसेस हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम आपका कर्नाटका एंड केरला साइड, दे वर ट्रांसपोर्टेड विद दिस एंड दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड एज स्पाइस रूट। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज सिल्क रूट स्पाइस रूट। जो आपका सिल्क रूट है वो आपका नॉर्दर्न पार्ट है और स्पाइस रूट आपका सदर्न पार्ट है, राइट। ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू द रूट्स, द चीफ किंगडम्स, दैट इज व्हाट आई सेड, आपका ट्रावनकोर आपका जो केरला वाला एरिया है, देन आपका मैंगलोर वाला जो एरिया है, ब्रूच आपका जो है वो, देन आपके इस तरफ आंध्रा वाला जो एरिया है, दे वर ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स, they were the important trade centers and this progressed the domestic and international trading in India. So ये एक पैराग्राफ आपको ये बता देता है that not today but India had a flourishing popular business even when such business, आज हम क्या कहते हैं, India is a member of WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज हम कहते हैं वी आर हैविंग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हमारे पास में ये है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, कंपनी लॉ है, हमारे पास लॉ बोर्ड्स हैं, बट ये सारी चीज़ें तब नहीं थी। येट ये चीज़ें ना होते हुए भी वी हैड द ट्रेड रूट्स, वी हैड द ट्रेड बिजनेस इन आवर कंट्री। Trade and commerce plays an important vital role in making India to evolve as a major actor in the economic world in the ancient times. पहले archaeological evidences have shown that trade and commerce was a mainstay of the economy of ancient India, carried by water and law. If anyone has visited Mohenjo-daro or Harappa? Anyone? Nobody. No one. Subhadeep, Sukalyan, Kriti, Kashish, Maulika. If you get a time, anytime, if you go over there to Gujarat, there you can find out these areas, आपका जो हरप्पा और मोहनजोदारो, क्योंकि दीज आर एक्सटेंडेड फ्रॉम पाकिस्तान आपका जो है टूवर्ड्स आपका पूरा पंजाब का थोड़ा साइड एंड देन आपका जो आपका राजस्थान का साइड, एंड देयर इफ़ यू गो यू विल फाइंड आउट कि हाउ द ट्रेड फ्लरिश, मतलब वहाँ पर जो आपकी वो सिटाडल्स बने हुए हैं, द सिटी प्लानिंग आपका बना हुआ है, दैट शोज दैट एट वन टाइम देयर वॉज अ मैरी टाइम, मतलब वहाँ पर जो है पानी था, मतलब जो दैट वॉज सी, एंड आपके बड़े बड़े शिप्स जो है उधर से जाते थे। The civilization had established commercial connections with Mesopotamia and traders, क्योंकि हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया के अंदर जो गोल्ड, सिल्वर, कलर्ड जेमस्टोन्स, बीड्स, पर्ल्स वगैरह है ना, ये सब वहाँ टेराकोटा के जो हमारे यहाँ के जो पॉट्स हैं ये सब मेसोपोटामिया में भी पाए गए हैं। तो दिस शोज मतलब द सेम आपका जो है, बिकॉज आर्कियोलॉजी जो है दैट स्टडीज वो मटेरियल को स्टडी करता है, इट स्टडीज, तो वो पता लगा कि जो टेराकोटा के जो पॉट्स हैं दैट विच वर फाउंड इन मेसोपोटामिया आर ऑल्सो फाउंड इन मोहनजोदारो एंड हरप्पा। तो दिस shows that there was an import and export between these two countries at that period. The period was marked with substantial commercial activities and urban development. Harappa is said to be the one of the best examples of urban development. And this is because जो उनका सिस्टम था, मतलब बाथरूम बनाने के से लेकर आपके जो ड्रेनेज से लेकर जो सिस्टम था, दैट वाज सो प्लान्ड कि कभी भी कोई मतलब कि घर के अंदर जो है प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। एंड दीज activities have been found up at par at all the places जिनके साथ हमारा जो है relations रहा है। Plus political,
economy, political economy and military security. During ancient times united most of the Indian subcontinent, trade regulations were carefully planned. There were diverse types of coins, weighing practices. Abhi to we are having a uniform. After French Revolution, we have come across with the uniform measures सबके. But उस वक्त में भी हमारे पास अलग अलग तरीके के coins होते थे. Like the coins were marked in that way कि इसमें इतना सामान आएगा ऐसे करके. They which used to vary from place to place with the money charges, with the help of the money changers and by resorting to certain commonly accepted weights and measures. Right? So this shows that India had a very good system of business even in the pre-colonial era, even when we say that the world had just started civilizing. Now, what was the system of banking? हम लोगों ने 4th या 5th चैप्टर पढ़ा था बैंकिंग इंश्योरेंस. हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंक्स हमें जो है दे गिव अस नंबर ऑफ हेल्प, दे गिव अस नंबर ऑफ सर्विसेज, जिसके अंदर हमने एक सर्विस पढ़ा था और मैं बार बार उस वक्त मैं आपको तब बोल रही थी कि देयर इज अ सर्विस कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज. And this bill of exchange जो होता है, this is specifically used even now also when we are having मतलब कि अगर ग्रेटर अमाउंट हो या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो वहाँ पर हम लेते हैं. दिस इज नाउ ओवर ड्राफ्ट, देन आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, देन कैश क्रेडिट, ये सब हम अब यूज़ करते हैं. बट दिस काइंड ऑफ सिस्टम वॉज देयर एट दैट पीरियड ऑल्सो. पहले क्या होता था, द मर्चेंट्स यूज टू गो टू द विलेजेस. बाद में the factories were set up. As economic life progressed, metals began to supplement other commodities as money because of its durability and divisibility. And as money served, पहले तो यही होता था कि we used to exchange, जिसको हम कहते हैं barter system. We called it as barter system. At that period, first of all, in the initial, we used to have the barter system in exchange of things. But later on, money was introduced. Money आपका money form में नहीं होता था. पहले आपके cattle, grain ऐसे होते थे. Later on, money came as a metallic money. और metallic money जो है उसको use कर सकते थे in different areas. हाँ, एक प्रॉब्लम ये होती है कि अभी भी होती है एंड दैट वी कॉल एज फॉरेन एक्सचेंज. जो इंडिया की जो करेंसी है दैट यू कैन नॉट यूज एवरीवेयर. यस, आई थिंक श्रीलंका, नेपाल एंड देन दुबई, ये तीनों जो है हमारी करेंसी को दे एक्सेप्ट. बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी नीड टू गो फॉर देयर ओन करेंसी. लेकिन अगर आप अक्रॉस इंडिया इफ यू आर यूजिंग दिस यू विल नॉट बी रिफ्यूज्ड. बट उस वक्त में ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी होती थी. एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो प्रॉब्लम्स आती थी. लेटर ऑन मेटेलिक मनी जो था दैट एक्चुअली गेव अप, और उसको हम कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस बैंकिंग एक्टिविटी. डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी एंड चिट्टी were in use for carrying out transactions in which money passed from hand to hand. हुंडी आपका आज भी हम यूज करते हैं. इवन हुंडी के नाम से ही हम आज भी यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज हुंडी? दैट इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी बीन टेलिंग यू. इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को अगर मतलब कि पैसा नहीं दे पा रहा, सप्लायर और आपके जो सप्लायर्स एंड
मर्चेंट्स होते हैं उनके बीच में. तो सर्टन टाइम्स व्हाट दे विल डू इज दे विल बी यूजिंग दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस विल बी डन ऑन क्रेडिट बेसिस. आज की डेट में जैसे चेक होता ना, वो होता आपका हुंडी. आपके आज की डेट पर जैसा आपका चेक होता है उसको हम कहते हैं हुंडी. यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ इट वॉज एंड दिस हुंडीज जो हैं अभी भी हम लोग यूज करते हैं. देर इज little bit difference between hundi and bill of exchange because बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इंडिया के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आ जाता है और हुंडी जो है इट डजंट हैव एनी कंट्रोल. मतलब उसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई इसको कंट्रोल करता है. सो दैट इज आपके हुंडीज एंड दिस वाज यूज्ड इन द मिडीवल पीरियड. इफ यू गूगल यू विल फाइंड नंबर ऑफ हुंडीज बने हुए आपको दिखाई देंगे. मतलब ये एक चेक की तरह होता है जहां ये बोला जाता है कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर पीरियड वी विल बी पेइंग यू द मनी एंड इफ द पर्सन इज उससे पहले उसे लेना होता है तो ही और शी गोज टू द बैंक. तो दैट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज. उस जमाने में हम उसको हुंडी या चिट्ठी के नाम से जानते थे. हुंडी इज एन इंस्ट्रूमेंट which was prominent in the subcontinent, involved a contract which warrant the payment, the promise or order which is unconditional, capable of change through transfer by valid negotiation. मतलब आप उसको किसी और को देकर आप उनसे वो पैसा ले सकते हो. So that is आपका हुंडी. Now how these are some of the hundis. This will not be there, I think. But even though the questions are there, dhani jog payable to any person, सहजोग सह मतलब साथ में, फिरमान payable to order, देखन हर पेएबल टू द प्रेजेंटर मतलब अगर मैं हुंडी लेकर आई हूँ तो आप वो पैसा मुझे दे दोगे. धनी जोग नो लायबिलिटी ओवर रिसीव पेमेंट, द पेमेंट ओवर अ फिक्स टर्म. फिरमान ऑलरेडी डन. जोखमी जोखमी मतलब जोखिम रिस्क लाइक मैरीन इंश्योरेंस. वैसे ये आपके जो है सिस्टम थे. दीज वर सम ऑफ द सिस्टम. We can also call them as LOC, that is letter of credit, right? The indigenous banking system played a prominent role. Later on we did not have a proper bank. पहले हमारे पास proper banks नहीं थे. Banks तो इंडिया में बाद में develop हुआ था. That is during the national movement हमारे यहाँ पर जो है first जो banks हैं वो उस वक्त में develop हुआ था. And वो था आपका 1806 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. बट उस वक्त में उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहते थे, उसको बैंक ऑफ कलकत्ता कहते थे. दैट वाज कॉल्ड एज द बैंक ऑफ कलकत्ता एंड दैट इज द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया. हमारे यहाँ पर जो हुआ था दैट वाज द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक आपका. और उससे पहले हमारा जो था इवन बहुत 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 मतलब वर्ल्ड के अंदर ही इट इज़ बंका मोंते कहते हैं हम उसको. इट्स इन पेरिस सिने. It's in Paris, but India के अंदर जो है it was which what we call as this. And M नरसिम्हन करके थे. He was the one who is called as the father of banking reforms. You may be asked that which is the oldest bank, and that is आपका SBI, which was called as Bank of Calcutta, right? मतलब जो proper आपका एक system के साथ आपका जो banking है वो था. बट पहले आपके बैंकिंग वॉज नॉट अ सिस्टम. बड़े बड़े लोग होते थे, द रिच पीपल, दे स्टार्टेड गिविंग लेंडिंग द मनी. पीपल began टू डिपॉजिट द प्रीशियस मेटल्स विथ दीज इंडिविजुअल्स. और इनको बोला जाता था सेठ या बैंकर. सेठ इंग्लिश में बैंकर. और इस तरीके से मनी बिकेम एन
इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द मैन्युफैक्चरर्स विद द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। ये लोग लेंड करते थे ऑन रेट्स, मतलब कि फिक्स रेट्स नहीं होते थे इनके, इनके अलग अलग रेट होते थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट होते थे। और इस तरीके से आपका एक जो बैंकिंग सिस्टम है दैट केम इन इंडिया। दे वर ओनली द लेंडर्स, एंड कभी कभी लोग जो है अपने सामान को, प्रीशियस सामान को इनके पास में रखवा दिया करते थे। Agriculture and domestication of animals were important components of economic life of ancient people. Due to the favorable climatic conditions, they were able to raise 2 or sometimes 3 crops. उसके अलावा they used to weave cotton, dyeing fabrics, making clay pots, मतलब ये सब उनके अलग अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती थी। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसके अंदर हमने पढ़ा था देर आर कॉटेज इंडस्ट्री। तो सम ऑफ द टाइम व्हेन द एग्रीकल्चरल लेबर्स और द एग्रीकल्चर पीपल हैड एक्स्ट्रा टाइम दे वुड रिजॉर्ट टू अदर वर्क्स, और फिर ये क्या करते थे, अपने सरप्लस को, अपने सेविंग्स को रखते थे फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। पहले इंडस्ट्रीज वर नॉट व्हाट वी कॉल एज इंडस्ट्री। अगर मैं आज आपसे कहूँ आई हैव एन इंडस्ट्री, तो आपके दिमाग में आएगा एक बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं। बट दिस सिस्टम वॉज इन द रूरल एरियाज, जहाँ आपके घर वाले, फैमिली के जो लोग होते थे वो लगे होते थे, एंड अगर उनको चाहिए होता था तो दे वुड बी कॉलिंग सम पीपल, दे वुड नॉट बी गिविंग द मनी, बट वो उनको ट्रेन करते थे स्किल्स में। एंड from one generation to another generation the skills were passed. आपकी जितनी भी हम साड़ियों के बारे में बात करते हैं, कोलकाता सिल्क हो गया आपका, पटोला सिल्क हो गया आपका, पोचमपल्ली सिल्क हो गया आपका, देन कुछ आपके स्पेसिफिक आपके आर्ट वर्क है ऑफ राजस्थान, ये देन कोलकाता के कुछ आपके, ये सब जो हैं दे ऑल वर स्किल बेस्ड। सो इनको घरों के अंदर किया जाता था, एंड दे यूज टू डू द वर्क, जिसको मतलब कारखाना, मतलब जहाँ काम होता है, there they used to convert the raw materials and that was called as a factory. The merchants from the city, they used to go to these rural area, इन लोगों को जो है एडवांस पेमेंट देते थे कभी कभी, एंड देन दे वुड आस्क देम टू मेक द डिमांड, जो डिमांड होता था वो सामान बनाने के लिए बोलते थे। The family based apprenticeship means most of the family members were there, and that is why in India Hindu undivided business जो है वो आपका आया था। That is why I had already told you that it is only India where it is only India where you have this Hindu undivided family business, and this is only because ये आपका system जो है it came in this way. Because in Europe जहाँ आपका इंडस्ट्री सबसे पहले शुरू हुआ था, दैट इज़ लंदन, आपका मैनचेस्टर एंड लीड, वहाँ तो आपका इवन दो वहाँ पर भी सिस्टम सेम था, बट दे डिड नॉट हैव द फैमिली बेस्ड, and later on the industries were scattered. हमारे यहाँ पर the industries were run by the family, so that is why we also inherited that system. The artisans, craftsmen, skilled laborers of different kinds of learnt and developed skills and knowledge which were passed on one generation to another. This was how. And जब इनको ज़रूरत पड़ती थी तो there were people who were rich, जो लोग सेव करके रखते थे, they were called as the सेठ, they were called as the bankers. कभी कभी 3-4 लोग मिलकर करते थे, and that was the system of banking that came. ये लोग इनको जो है they used to give them credit, they used to keep their things on mortgage, और इस तरीके से जो system of banking है that came into India. अब आता है intermediaries. Now what are intermediaries? हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जब हम बिजनेस को करते हैं तो वी हैव एक्सटर्नल बिजनेस, वी हैव इंटरनल बिजनेस, राइट। और इंटरनल में हमने पढ़ा था होलसेलर, रिटेलर, और एक्सटर्नल में पढ़ा था हमने एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंट्रापोर्ट।
और जो इंटरनल ट्रेड में जो आपके होलसेलर और रिटेलर हैं, इनको हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। इनको हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। द कमीशन एजेंट्स, द ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, या तो ये लोग जो हैं कमीशन पे सामान लेकर जाते थे एंड दे विल सेल ऑफ इन द इनिशियल पीरियड। ये लोग मर्चेंट्स के पास जाते थे, सामान खरीदते कमीशन पर और बेचते। देन दे बिकेम ब्रोकर, वहाँ खरीदने वाला कोई, यहाँ बेचने वाला कोई। देन डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब होलसेल में सामान ले जाना, और रिटेल में, एंड वो आज भी हम लोग करते हैं। टिल डेट दैट होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर्स, ये सारे अब भी हैं। They provided considerable financial security to the manufacturers by assuming responsibilities for the risk involved, especially in foreign trade. An expanding trade brought in huge amounts of silver bullion into Asia, and a large share of that bullion gravitated towards India. मतलब इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था टूवर्ड्स अ फॉरेन, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारा सामान था जो बाहर जाता था। एंड दैट वॉज हाउ इंटरमीडियरीज में आपके जो जगत सेट्स हैं, दैट इज हाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स, जगत मतलब वर्ल्ड, सेट्स यानी कि द वन हु फाइनेंसेस अक्रॉस कंट्रीज, उनको हम जगत सेठ कहते हैं। एंड ये आपका जो जगत सेठ है ना, दे वर अ बनिया बैंकिंग फैमिली। आई एम सॉरी अगर आप में से कोई है तो, इट्स नथिंग टू, आप में से किसी को कुछ नहीं बोलना है, बट दिस इज जगत सेठ जो है, हाउस ऑफ जगत सेठ, द वेल्दी बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, जिनको हम बनिया बैंकिंग फैमिली भी कहते हैं। दिस डेवलप्ड इन 1763। वैसे उनका नाम था महातब चंद। और ऐसे जो लोग थे, दोज हु वर अक्रॉस द ग्लोब, जो मतलब कि फॉरेन ट्रेड के लिए भी पैसा देते थे, ये सारे जो है मतलब द इंटरमीडिएट्स, दे ऑल्सो केम आउट। कमीशन एजेंट्स, यहाँ से लेकर वहाँ बेचना, आजकल हम लोग उसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के थ्रू भेजते हैं। बैंकर्स began to act as trustees and executors of endowments, मतलब टू ट्रस्ट करना, ट्रस्टीज सामान का, एंड एग्जीक्यूटर्स ऑफ एंडोमेंट्स मतलब जो सामान होता था उसको पहुंचाना, उसके बदले पैसा लेकर यहाँ तक देना, क्योंकि उस ज़माने में आना जाना वॉज नॉट सो ईजी। द मूवमेंट ऑफ गुड्स वॉज देयर, कैपिटल वॉज देयर, बट पीपल का मूवमेंट थोड़ा कम था। तो दीज इंटरमीडियरीज जो बीच में थे, ये करते थे, यहाँ से सामान लेकर उनके बदले उनको पैसा यहाँ तक पहुँचाना। Foreign trade was financed by loans. That is where the Jagat Seths जो हैं they come into. However, the rate of interest for longer voyages was kept high in view of huge risk. This can come as an assertion and reason question. आपके पेपर में ये assertion and reason की तरह आ सकता है, क्योंकि longer voyage में क्या होता है, आपको वेदर कंडीशन, आपके शिप को पायरेट्स का अटैक, शिप को वेदर की वजह से मतलब डूबने का खतरा होता है, इसीलिए व्हेन द लॉन्गर वॉयज वाज देयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट दे चार्ज वाज हाई। द इमर्जेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एंड एडवांसेस एनहांस कमर्शियल। इसकी वजह से क्या हुआ, जब लोन मिलने लगा लोगों को आसान मतलब की तौर से, एडवांसेस मिलते थे उन लोगों को सामान करने के लिए। As I said, the merchants used to go and give the advance to the craftsmen. तो उसकी वजह से क्या था, हमारा कमर्शियल ऑपरेशन काफ़ी हद तक अच्छा हुआ था। बट इट वॉज लेटर व्हेन गुमाश्तास केम इनटू, जब ब्रिटिश आ गए थे, उस वक्त में यही ऑपरेशंस हमारे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो मारा पीटा करते थे। बट पहले क्या होता था, द इंटरमीडियरीज, उनको यहाँ से मिलता था, वो लोग सम पैसा लेते थे, पैसा लेकर उनको दे वुड बी टेकिंग द रिस्क, मतलब वो अपना पैसा लेते थे, दे वुड बी टेकिंग द रिस्क। आज हम जिसको एक्सपोर्ट हाउस, इम्पोर्ट हाउस, बायर्स हाउस बोलते हैं, ये काम पहले ये लोग करते थे। दे वुड गो एंड गिव द एडवांस, फिर सामान खत्म होने के, सामान बनने के बाद दे वुड टेक अप एंड दे वुड गो, सो दे वुड टेक ऑल द रिस्क। The Indian subcontinent enjoyed the fruits of favorable balance of trade. What is favorable balance of trade?
अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं तो नेचुरल है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा, और इंपोर्ट कम करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज कम खर्च करना पड़ेगा, तो दैट विल ऐड टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री. दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. एंड दिस इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, द मतलब ये सब जो है दैट बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर, ट्रेड्स एंड मर्चेंट्स विद एडिशनल कैपिटल फंड फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट. ये तो लेटर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स, एग्रीकल्चरल बैंक्स, ये सब बाद में आए थे. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी हैड द फर्स्ट बैंक वाज इन बैंक ऑफ कोलकाता. लाला लाजपत राय जी जो हैं उन्होंने खोला था आपके पाकिस्तान में, पेशावर में. वो बैंक अभी भी है वैसे का वैसा ही, राइट. दिस वॉज द फाइनेंस सिस्टम. हम लोगों ने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा था, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमने पढ़ा था फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट. तो फाइनेंस हमारा उस ज़माने में ऐसा था. ट्रांसपोर्ट we have studied at the very first, we had the silk route, we had the spice route. मतलब हमारे पास लैंड एंड वाटर दोनों ही पॉपुलर थे. रोड्स they were not developed in the way we are having, but yes they were stretched from Bengal to Takshila. और बंगाल आपका पूरा आज का वेस्ट बंगाल, आपका आज का जो पूरा बांग्लादेश, ये सारा आपका बंगाल में आता था. एंड तक्षशिला आपका पाकिस्तान, तक्षशिला आपका पाकिस्तान. That is the university, as I have told. People used to come from far away places to have the education. There were also trade routes in the south spreading east and west. Trade routes were structurally wide and suitable for speed and safety. और मैरीटाइम हमारा बहुत सारे थे. आई थिंक इन आवर दिस इज, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दिस इज आपका, ये आपका सारा मैरीटाइम है, ये सारा आपका मैरीटाइम है. एंड दिस मे कम एज मैच द कॉलम आपके पेपर में, दिस मे कम एज मैच द कॉलम. मालाबार कोस्ट जो आज का ट्रेवनकोर, दैट इज आपका केरला, ऑन विच मुजरीज इज सिचुएटेड, हैज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम. यहाँ से आपकी जो काली मिर्च है जिसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता था, दैट वॉज ट्रांसपोर्टेड. And this was valued in the Roman Empire. Black gold. For centuries, it remained the reason for rivalry and conflict between various empires and trade powers to dominate the route for this trade. मतलब बहुत सारे लोग उस एरिया को कब्जा करने के उसमें रहते थे, because that was one of the most powerful area in trade. It was in the search of an alternate route to India for spices that led to the discovery of America by Columbus in the closing year of 15th, and also brought Vasco da Gama to the shores of Malabar. This is also there. Calicut आपका again was such a bustling emporium that it was visited by Chinese ship to acquire items like frankincense, मतलब इंसेंस आपकी स्मेल, एसेंशियल ऑयल, मिर दैट इज परफ्यूम्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट. आपका परफ्यूम जो है वो आपका पर्शिया से आया था सबसे पहले, आपका सबसे पहले वो पर्शिया से आया था. और पर्शिया आज की डेट का आपका ईरान, आपका जो ईरान इराक है वो आपका जो है उस वक्त में. एंड कैलिकट अगेन इज इन सदर्न पार्ट, दैट इज नाउ वी कॉल इट एज Kozhikode. We now call it as Kozhikode, Kozhikode. It's a city in Kerala. और ये आपका जो है मतलब this is the place where Vasco da Gama had landed, right? Apart from that, pepper, diamonds, pearls and cotton from India on the Coromandel, that is on the right side, that is on the Tamil Nadu and Andhra coast. Pulikat आपका तमिलनाडु, जहाँ से आपके टेक्सटाइल्स जो है वो एक्सपोर्ट होती थी. नेक्स्ट इज हु. आज भी हम लोग कहते हैं हमें बिजनेस कम्युनिटी में शादी नहीं करनी. नॉट एवरी वन वॉज बिजनेस मैन, नॉट एवरी वन वॉज डॉक्टर, नॉट एवरी वन वॉज इंटरमीडियरीज. तो इनको जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया था.
means by the virtue of time. Punjabi and Multanis, आज भी they are said as one of the strongest businessman in India. They were in the northern region, आपका हिमाचल, पंजाब, आज का हरियाणा, देन आपका पाकिस्तान, आपका जम्मू कश्मीर, ये वाला जो एरिया, ये सारा पंजाबी और मुल्तानी. While the Bhatts, they were in गुजरात एंड राजस्थान. इनको वेस्टर्न इंडिया में महाजन बोलते थे, महाजन और ऑल्सो बनियास भी बोलते हैं हम लोग. छत फ्रॉम साउथ. And in Mahajan community collectively represented by their chief is called as Nagar Seth. Nagar मतलब उस जगह का, नगर का सेठ. Other urban groups मतलब हकीम एंड वैद माने जाते थे, those who are into medicine, वकील, लॉयर, पंडित और मुल्ला for teachers because they taught. पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, ये हमारे कुछ स्पेशल आपके जो है नेम्स दिए गए थे, जो जो जैसा काम करता था. और इसी के साथ एक कम्युनिटी से बन गई थी, उनकी शादियां आपस में होना, उनका मतलब कि रहना खाना पीना सब एक जैसा हो गया था. और आज भी आप लोग इस चीज़ को बड़ा मतलब कि यू कैन आइडेंटिफाई. नाउ द मर्चेंट कम्युनिटी ऑल्सो डिराइव्ड एंड पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम गिल्ड्स. गिल्ड्स कौन होते हैं? They were the autonomous corporation formed to protect the interest of traders. मतलब ट्रेडर्स ने अपना एक कम्युनिटी बनाया था, अपना एक ग्रुप बनाया था, एक यूनियन बनाया था. जैसे हमारे उसमें यूरोप में इसको ज़ोल्वेरिन बोलते थे, वैसे हमारे यहाँ पर भी गिल्ड्स बने हुए थे. एंड दीज वर मेड ऑन अ फॉर्मल बेसिस. फॉर्मल बेसिस का मतलब इनकी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता था, रूम मेंबरशिप कैसे मतलब कि आ सकते हैं ये. एंड एक किंग भी, क्योंकि उस ज़माने में आपके किंग्स होते थे, तो एक प्रिंस को दूसरी जगह पर जाना होता था, सामान लेकर जाना होता था. दे ऑल्सो इवन रिस्पेक्टेड देयर रूल्स. तो दिस वे वी हैड अ प्रॉपर सिस्टम. हाँ, सिस्टम थोड़ा अलग अलग था बिकॉज वी इंडिया वॉज स्केटर्ड इन किंग्स. हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे. ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस वर अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. द ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज. ऑक्ट्रॉय आपका होता है टोल टैक्स, हम जिसको बोलते हैं. अब तो दिस इज अबॉलिश्ड. और on most of the imported articles at varying rates, they were paid either in cash or in kind. कैश तो पैसा, काइंड उसके बदले सामान देना. अगर उन्होंने सामान बाहर से मंगवाया है एंड दे हैव टू एंटर इट, से उन्हें कैलिकट के थ्रू एंटर करना है, तो वहाँ के पोर्ट को वो पैसा देते थे. पैसा नहीं होता था तो उसमें से कोई सामान दिया. वैसे कस्टम ड्यूटीज वैरीड अकॉर्डिंग टू कमोडिटीज. टैरिफ्स वैरीड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस. ये मैं अभी आपको मैंने बताया कि उस वक्त में इंडिया वॉज स्केटर्ड इनटू नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो टैरिफ आपका अलग था. इनफैक्ट अभी भी आपका जो पटौड़ी है, सैफ अली खान जी के जो फादर का मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वहाँ स्टिल दे टेक दिस प्रिविलेज. वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं and they are given some amount. The ferry tax was another source of income generation. फेरी का मतलब होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सो देवर या उनका सामान जाता था, फेरी करते थे, तो उससे भी उनको टैक्स मिलता था. अलग अलग तरीके के टैक्सेस. मीन्स व्हेन दे वर इम्पोर्टिंग, तो इम्पोर्ट टैक्स आपका. ऑक्ट्रॉय, जब सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ इम्पोर्ट होकर जा रहा है. फेरी टैक्स, जब सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है. द राइट टू रिसीव द लेबर टैक्स वॉज यूजुअली ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज. द गिल्ड चीफ, जो गिल्ड का मतलब उस एरिया का जो भी ट्रेडर कम्युनिटी का जो हेड होता था, ही वुड डायरेक्टली डील विद द किंग और टैक्स कलेक्टर्स and settled the market toll on behalf of its fellow merchants at a fixed sum of money. Every month उनको या every year उन्हें जो पैसा देना पड़ता था वो देते थे. Plus they were also custodians of religious interest. Like donation से वो temples वगैरह बनाते थे,
और इस तरीके से द कमर्शियल एक्टिविटी दस इनेबल्ड बिग मर्चेंट्स टू गेन पावर इन द सोसाइटी. नॉट ओनली दे वर बिजनेसमैन, दे हैड पावर. These are the major trade centers of our country. This will come 100% as match the column. या फिर आपके जो है it may come as MCQs or maybe this will come. ये पोर्शन आपका इंक्लूड होगा. पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना जानते हैं, ये इसमें आपको क्या याद करना? मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स. पेशावर पाकिस्तान में है अभी. एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वूल एंड हॉर्सेस. It had a huge share of commercial transaction between India, China and Rome. Takshila, I have already told Takshila University, Buddhist Center of Learning. It was a financial and commercial banks हमारे यहाँ पर थे. इंद्रप्रस्था अभी जो दिल्ली है आपका, देन ये वाला जो पूरा स्ट्रेच है NCR, दिस इज अ कमर्शियल जंग, नॉर्थ से भी, साउथ से भी, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी. मथुरा आपका, it touched many routes from South India, touched Mathura and Broach. It was an emporium of trade and people here subsisted on commerce. Varanasi, that is आपका UP, that link north with the east and it is a textile industry. आपका जो बनारसी साड़ियाँ, it is famous for its beautiful gold silk cloth और यही आपके हैं बनारसी साड़ियाँ. It also had the links with Takshila and Bharuch. Mithila, अयोध्या, मिथिला, ये सारा आपका आता है. The traders of Mithila crossed the seas by boat through the Bay of Bengal to South China Sea and to the ports of Java, Sumatra, आपके उस तरफ जापान की तरफ, उस मतलब उस देख. उज्जैन आपका, इंदौर मध्य प्रदेश, जहाँ आपके अगेत, कर्नीलियन, मुस्लिम, ये सारे क्लोथ्स हैं. दे आर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड दे हैड द फ्रॉम मध्य प्रदेश टू तक्षशिला एंड पेशावर द लैंड रूट वाज देयर. सूरत, even today it is one of the leading business area of India. Gujarat, textiles of Surat were famous for their gold border. Surat Hundi was honored in far markets of Egypt and Iran. And even today, Surat is said to be the hub for textiles. Kanchi, Kanchipuram, that is Chennai. आपका फिर से वही Kanchipuram साड़ी. Pearls, glass and rare stones. मदुरा आपका, मदुरई, तमिलनाडु. यहाँ आपके जो हैं pearl fisheries. This was taken. Broach आपका western India, मतलब near this Gujarat. For it was a seat of commerce. Kaveri Pattam, ये आपका इस वक्त में it is in Andhra. It was scientific in its construction, जहाँ आपके port था. The foreign traders had their headquarters. It was a convenient place for Malaysia, Indonesia, China and Far East. यहाँ से perfume, cosmetics, scent वगैरह जो है they were shipped. ताम्रलिप्ति, the greatest port which was connected by road to Banaras and Takshila. इसमें आप लोग जो हो कांची, then ब्रोच, सूरत, उज्जैन, देन आपकी ये वाली जो फर्स्ट 4-6 हैं इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. What were the things that we exported and imported? Most of the things were exported and imported. We did not have an EXIM policy. हमारी कोई एग्जिम पॉलिसी नहीं थी कि यही चीज़ मतलब हम, लेकिन जो भी चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा होती थी these things were taken. Merchants यहाँ आते थे, when they found these things useful or beautiful, they would carry some of them, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक स्पेसिमन लेकर जा रहे हैं. They would take to their own countries. वहाँ से when they would receive the order, they would come back और फिर यहाँ से बनवा के वो लेकर जाते. तो this way export और import हमारा स्टार्ट हुआ था. Export consisted of spices, wheat, sugar, indigo हमारा बहुत ले रहा है. Opium हमारा जो है that was done
दैट वाज टू चाइना। ओपियम आपका जो है वो चाइना में था, और चाइना के अंदर जो है दवाइयाँ बनाई जाती हैं। वैसे तो ओपियम जो है इसको हम लोग ड्रग बोलते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली यूज फॉर मेकिंग द मेडिसिन्स। सिसमी ऑयल, आपका तिल का तेल, कॉटन, पैरट, लाइव एनिमल्स प्रोडक्ट्स, ये सब यहाँ से जाते थे। एंड वी हॉर्सेस हमारे यहाँ ईरान पर्शिया से आते थे। देन आपका पेशावर की तरफ एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ सिल्क, flax, linen, wine, gold, silver. These were some of the things that we imported. That is what we say as India always stood as golden bird. हम इसको स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे. Some of the writers have even said it is स्वर्ण द्वीप. The country was often referred as स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप. जैसे मेगस्थिन है, फाहिन है, ऑलबेरूनी है, इब्न बटूटा है, इन सब ने हमारे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में कभी बहुत लिखा है। एंड इट इज सेड दैट वी हैड द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एंशिएंट एंड मिडिवल वर्ल्ड, दैट इज वर्ल्ड का 1/3 या 1/4 मतलब वर्ल्ड जो है वो हमारे पास था। बट as I had already told you that during the British era there were number of restrictions. हमारे जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस था ना उसको बंद कर दिया था। The pre-colonial in Indian history was an age of prosperity. Europeans embarked great voyage of discovery. Initially they came to plunder, but soon realized the rewards of trade in exchange of gold and silver. वो यहाँ आ गए। It is said, I don't know, I haven't visited हिस्ट्री, बट कहा जाता है कि जो आपके ईस्ट इंडियंस थे, एग्जैक्टली तो ईस्ट इंडिया यहाँ नहीं आया था, बट जो ये ब्रिटिश कंपनी वगैरह थे ये तो यहाँ आए थे जहांगीर के उसमें फॉर ट्रेड, बट स्लोली दे हैड एंटर्ड इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन एरा, और कंप्लीट जो हमारा कंट्रोल था दैट केम टू देम। The East India used revenues generated by the province under its rule for purchasing Indian raw material, spices and goods. यहाँ से वो raw material लेते और वहाँ से finished goods आते। raw material हमेशा सस्ता होता है, और इसी वजह से हमारा जो Indian economy है that completely turned. The continuous inflow of bullion that used to come, पहले जो आता था वो stop हो गया, तो इंडियन इकोनॉमी एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया, और जितने भी आपके फिनिश्ड गुड्स थे ये हम लोग खरीदते थे। और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क पड़ा था, आर्टिजन्स हमारे जो थे उन पर बहुत फ़र्क पड़ा था, सारे इंडस्ट्रीज बंद कर दिए गए थे। दैट वाज ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब ब्रिटिश वॉज बिजी इन द वॉर और उनको अपने घोड़ों के ऊपर जो नाल मतलब कि जो चढ़ाते हैं उसके लिए सामान चाहिए था, उनको खाने पीने की चीज़ें, क्लोथ्स चाहिए थी, तब उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को जो है हेल्प दिया था। एंड मेनी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे रतन मतलब जैसे टाटा आपके हो गए, बिरला आपके हो गए, एंड मेनी मतलब कि जो है दे ऑल एस्टैब्लिश देमसेल्व्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, बट उससे पहले इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्परस। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस we had lots of problems. सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इंडिया had become a poor country. We were underdeveloped. We did not have enough capital. There were many people from industrial areas जिन्होंने कहा था कि before independence 1944 में that they wanted to have a Bombay model, जिसमें वो लोग जो है कोशिश करेंगे डेवलपमेंट को, लेकिन उस वक्त में हमारे पास इतने इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। सो दैट इज वाई द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। आज हम जो मतलब की प्लानिंग कमीशन है उसका जो आज का नया नाम है वो है नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बट पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था। इन्होंने प्लान्ड डेवलपमेंट लिया फॉर 5 ईयर्स।
which started in 1952. First 5 years they focused only on agriculture. एग्रीकल्चर का मतलब है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स, आपके डैम्स, आपके रोड्स, आपके उसका नाम क्या है, HYV सीड्स, आपके फर्टिलाइजर्स, मोर मतलब की. देन सेकेंड आपका था फॉर इंडस्ट्रीज. देन थर्ड आपका मिला जुला था. देन देर वॉज अ प्लान्ड हॉलीडे. प्लानिंग में क्या करते थे, देयर वर टू काइंड्स ऑफ बजट्स. एक होता था नॉन प्लान्ड, रूटीन आपके जो खर्चे होते हैं, और जो प्लानिंग होती थी जिस भी चीज़ के लिए किया जाता था उसी पर खर्चा किया जाता था. बट इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप बिकॉज वी वर नॉट हैविंग कैपिटल फॉर्मेशन. उस वक्त में 1947 में वर्ल्ड में दो हिस्से थे. एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट इज वेस्टर्न कंट्रीज, यूके, यूएस, फ्रांस, स्पेन, हाफ ऑफ जर्मनी. इस तरफ आपका रशिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ये सब आपके जो थे सोशलिस्ट, जिसमें गवर्नमेंट वाज कंट्रोलिंग द एंटायर इंडस्ट्रीज. एंड विद द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो लोग पुअर पीपल को, मतलब उनके लिए सारे डेवलपमेंट करते थे. कैपिटलिज्म में क्या होता था, ऑल द रिच पीपल ओन्ड ऑल द इंडस्ट्रीज और उनके टैक्सेस से कंट्री को डेवलप करती थी. दैट वाज अ कैपिटलिस्ट मॉडल, दिस वाज अ सोशलिस्ट मॉडल. इंडिया ने दोनों मॉडल्स नहीं लिए. इंडिया ने लिया मिक्स्ड मॉडल. हमारे पास उस वक्त में कैपिटल कम, पॉपुलेशन ज़्यादा, क्योंकि 1947 में ही आपके जो है तुरंत वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, छोटा सा. देन उसके बाद 60s में आपके वॉर हुआ था, चाइना के साथ वॉर हुआ था, फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था. वी वर हैविंग ह्यूज एक्सपेंडिचर. इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे पास नहीं थे. एंड अल्टीमेटली हमने कई बार रिफॉर्म्स किए थे. वी हैड डन मेनी रिफॉर्म्स. अल्टीमेटली इट वाज इन 1991 जब इंडिया बहुत कर्जे में था एंड इट आस्क्ड फॉर लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक जो है कभी भी लोन आपको वैसे नहीं देता. इट पुट सम क्लॉजेस, इट पुट्स सम कंडीशंस. तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने ये कंडीशन पुट किया दैट यू शुड गो फॉर LPG. LPG लिबरलाइजेशन, यानी कि ट्रेड बैरियर्स को हटा दीजिए. प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्रीज थे उन्हें प्राइवेट को दे दीजिए. एंड ग्लोबल, यानी कि जो ग्लोबल फर्म्स हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर मतलब कि ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाए. दैट इज हाउ वी started our opening up our economy. Now after 1991 मैं इसकी जिंदा मिसाल हूँ. The income has risen, savings, investment opportunity, क्योंकि आज आपके पास एक बैंक नहीं है. We are having number of banks, number of schemes. The opportunities have increased. Now foreign companies are directly investing in our company. They are also listed. And then there are जो restrictions थे आपके ट्रेड के ऊपर. पहले आपका ट्रेड बैरियर होता था. अगर मुझे एक पेट्रोल पंप खोलना है तो मुझे जो है instead of spending 20 लाख रुपीज़ I have to spend 2 crore rupees to give a bribe. अब ऐसा नहीं है, वो लाइसेंसिंग वाला हट चुका है. और इसी के अंदर आपका जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, दैट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. नीति आयोग के अकॉर्डिंग, अभी मैं जस्ट आपसे पहले यही पढ़ा रही थी क्लास 12th को. नीति आयोग हैज़ बीन असाइंड दैट फ्रॉम पिन टू प्लेन एवरीथिंग शुड बी मेड इन इंडिया. जो रॉ मटेरियल्स हैं वो यहाँ आए. हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग तरीके की यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश किए जाए जिससे कि उनके स्किल्स डेवलप हों. दिल्ली के अंदर आपका वर्ल्ड स्किल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन ओपन्ड. 2 years later when you all will complete your 12th standard,
मे बी आप में से कोई वहाँ एडमिशन ले। दे आर, अब जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज़ ऑल्सो को रिलेटिंग टू दिस, कि जब हम स्कूल से बाहर निकलें तो वी हैव सर्टन स्किल्स इन अस। उसी में आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं देवर एडेड, ये सब अभी न्यू है। दीज ऑल हैव बीन डन इन द न्यू digital India, digitalization. After the period of demonetization, the new digital payments have come, which has also reduced the corruption. And अभी हमारा import export, we are having a very good. This can come, ये जो आपका फोटो आया है, this is make in India. This can come as identification. This is on job creation. 25 सेक्टर्स हैं जहां इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यू मे बी आस्क्ड टू गिव द डेट ऑल्सो ऑन 25 सितंबर 2014। बेसिकली मेक इन इंडिया में कौन कौन सी जगह पर इंडिया में चीज़ें बनाना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इसके अंदर ओला ने अभी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स भी वो भी निकाले हैं। एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस में भी इंडिया ने कुछ मैन्युफैक्चर किया है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसमें हमारे जो इवन दे आर ऑल्सो इन्वाइटिंग द कंपनीज लाइक जायंट कंपनीज लाइक एप्पल एंड सैमसंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, यहीं पर बनाएं, यहीं के रॉ मटेरियल से बनाएं। एंड आई थिंक द फर्स्ट बैच इज गोइंग टू कम दिस ईयर ऑल्सो। IT, BPOs, लेदर, माइनिंग, दीज आर द 25 एरियाज जहाँ करें। अगर आप कभी कल को इफ़ यू फील दैट यू वांट टू गो फॉर एनी ऑफ दीज अंडर द स्किल, मतलब इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मेक इन इंडिया के अंदर जो है, द एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल्सो गिवन लोन्स, दे आर ऑल्सो गिवन, अभी आप लोग बाद में पढ़ोगे, वी हैव एंजल इन्वेस्टिंग, मतलब हमारे पास ऐसे अलग अलग है। सो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो, गवर्नमेंट में सब्सिडीज़ भी मिलती हैं। एंड अगर आपका इन 25 में से किसी एक में आता है तो यू आर गिवन ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प ऑल्सो टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ बिजनेस मैन, right? So this is the first chapter which is now complete.